हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल हरि बोल. So we have a very, very important guest for inaugurating Dilraj Kaur, one of the famous singers of Bollywood, Hollywood and whatnot. So we are very pleased that she has come here to inaugurate this joint of only parathas. So we are very happy that we are here, and she is also happy. She is going to inaugurate by applying a wonderful scissor, and after that she will break the coconut. Yes. Yeah, you have to break the coconut. One more. Yeah. Now everybody can do the kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. See it there. Leave it there. हे पुष्का हरे कृष्ण मैं विष्णा रहा About this idea, So Only Parathas is already a restaurant in Khar, and we were serving over 400 varieties of paratha there. Other than that, Delhi style food was the highlight of the entire restaurant. So considering the locality that we are in, Oshiwara and Andheri, and the relevance of people who live here, this food, the style food, the Delhi style food that we do was the idea to bring that food here in Delhi. ओनली पराठे की बात करें तो किस ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि लोगों को सेहत See, the oil that we use is pure देसी घी जो होता है वो यूज़ किया जाता है इसमें. That makes sure that the parathas are very properly made and the way they are authentically made in Delhi. तो the ingredients and the food that we use to make this वो top quality होता है उसके. okay, as you mentioned, there are 200 varieties of parathas, Right. Right. That means there are parathas who are famous from here. For example, the Delhi parathe wali gali is very famous. Correct. Are we getting that Yeah, you're exactly getting that. So जो दिल्ली स्टाइल पराठे बनते हैं, पराठे वाली गली से जो पराठे बनते हैं वही पराठे होते हैं, prepared in the same way, served with the same sides. इसमें दाल होते हैं, छोले होते हैं, रायते होते हैं, and that is how it is served. तो proper दिल्ली का authentic पराठास जो होता है वो यहाँ पे recreate होता है. Okay, how challenging it was for you? Only parathas. जब हम पराठे की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पराठे सर्व कर रहे हैं और भी अलग-अलग तरह के 400 किस्म के. Correct. एक यूनिक आइडिया है ये. Yes. तो उस बात के लिए are you nervous or excited? What's there in your mind? No, this is very exciting actually when you have all the ingredients that you want. आप एक पराठे के मिक्सचर में डाल के उसे जब सर्व करते हैं, so this becomes a very exciting and an interesting thing because आप जब हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, so you can actually mix and match whatever you like, जो आपको पसंद है ingredients, and make your own parathas. As many as 5 different types of ingredients can be put in one single paratha to create a very unique taste in every paratha. सर पराठे की बात करें तो जैसे पराठे का नाम कान में आता है तो जबान से पानी टपकने लगता है. Right. और ये ओनली पराठा क्या स्पेशल ओनली पराठा पेश करने वाला है जी, उसमें क्या खासियत है? So पराठे का जो टेस्ट होता है, when we talking about special पराठे जो होते हैं हमारे एक शेफ स्पेशल पराठे होते हैं
वेर आर सिलेक्टेड नंबर ऑफ पराठास जो हर तरीके से टेस्ट किए हुए हैं आर प्रेजेंटेड इन द मेन्यू आप लोगों के लिए। सबसे स्पेसिफिकली इफ़ यू आर हैविंग चीज़ गार्लिक पराठा जो आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वेर यू हैव अ लॉट ऑफ चीज़ गार्लिक एंड उसके साथ इसको पूरा प्रेजेंट किया जाता है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं ओनली पराठा? बहुत चखा पराठा जी आपने हाँ, चखा? अभी हम चखने वाले हैं शायद, हाँ जी। हमने अभी चखा नहीं है लेकिन उम्मीदें हैं बहुत, इसलिए भी हैं कि हम काफ़ी ढूंढते रहते हैं, हमको नहीं मिल पाते हैं अच्छी तरह से खाने के लिए। लेकिन पराठा जो इन्होंने सोचा बहुत अच्छा सोचा है। इसका एक कारण ये भी है, जैसे कि आपने हमसे पहले सुनी ये बात, कि ये हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है और हम अपने नानी दादी के हाथों का पराठा वाकई हम मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और इस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि उसमें इस वक्त पूरी कंट्री जुड़ी हुई है। आप कह लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पराठे के बारे में सबको मालूम है। और ये ख़ासकर मैंने पाया कि जब कभी हमारा दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था तो रास्ते में जो ढाबे आते हैं वहाँ वो जो पराठा, जो उनका साइज़ और प्लेट में जब वो घी और मक्खन डालते हैं तो इतना ज़्यादा वो इतनी क्वांटिटी होती कि एक इंसान अच्छी तरह खा भी ना पाए, मतलब खा ना पाए, इतना ज़्यादा होता है वो क्वांटिटी। तो उससे जो हमारे देश के जो लोग हैं उनके दिल का और उनका जो अंदाज़ है, हमारे पूरे देश की संस्कृति इस पराठे के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है और ये पूरी कंट्री को जोड़ रहा है। आज ठीक है कि लोगों को जैसे ये बता रहे थे अभी कि चीज़ और ये सब चीज़ें चाह रहे हैं, नेचुरली ये कुछ समय की चीज़ होती है कि समय के साथ साथ बदलाव भी आता है। लेकिन आज भी आप आलू पराठा और गोभी पराठा, मेथी पराठा, मूली का पराठा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कभी ये स्टेल नहीं होंगी और लोग आने वाली जनरेशन्स इसको पसंद करेंगी। और ये इन्होंने इतना अच्छा सोचा क्योंकि मुझे बम्बई में जो टेस्ट मुझे चाहिए वो मिलता नहीं है, माफ़ कीजिएगा। और हवा पानी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो गंगा जमुना का मैदान नॉर्थ इंडिया में आता है या पंजाब में 5-5 नदियाँ वहाँ बड़ी बड़ी हैं, तो वो जो पानी और हवा है उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोशिश की जाएगी तो ये हमें बहुत अच्छा टेस्ट हमें पराठे का दे सकेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आप कुछ भी करिए उसमें जो घी चाहिए होता है, प्योर घी चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स यानी जो गेहूं की क्वालिटी है, जो बेस है उसका, वो भी बहुत बढ़िया चाहिए। बल्कि मैं तो इनसे चाहूँगी कि बाजरा और मक्का इसका भी थोड़ा सा अगर ये उसमें मिक्सचर करेंगे और उसमें ये गोभी या पराठे बनाएंगे तो वो उसका भी टेस्ट कुछ अलग ही होगा। बहुत सा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। और Okay, why you choosing this location? तो आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे अगर पराठा खाने या वेस्टर्नाइज करना? आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ टेस्ट में अच्छी होती है और जहाँ पर जो ज़बान है वो आप देखिए ना पूरी दुनिया में एक है। जो हमारे जो पहली बात तो अपने आप को हम देखें कि आखिर हम पराठों के पीछे क्यों जा रहे हैं। ये भी तो एक बात है ना कि आज हम एक ऐसी जगह, ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया है जो सिर्फ ओनली पराठा कहला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा टेस्ट है, जो ज़बान के थ्रू ये हर एक को चाहिए। और ये जो पराठा ये एक फुल मील है अपने में। अगर आप ऑथेंटिक पराठा लेंगे तो आपको दही, बढ़िया दही और पराठा चाहिए, तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अपने में कंप्लीट मील है। और जो नई जनरेशन है उसको आप अपनी जनरेशन से जोड़ भी रहे हैं, आगे तो आ ही रहे हैं। और हेल्थी फूड है ये, इसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छी तरीके से, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे नुकसान होगा, प्रोपोर्शन में खाएंगे वही चीज़ आपके लिए बहुत हेल्थी है। और आप देखें पंजाब में, क्योंकि ये जहाँ से चला, और दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में लोग आए तो वो ज़्यादातर उन्होंने वही चीज़ें ली हैं, इंग्रेडिएंट्स भी वही, और वही ओनली पराठा का मतलब है कि वो इंग्रेडिएंट्स मिलने ही चाहिए। एक्सपेरिमेंट भले ही करें लेकिन जो ऑथेंटिक ऑलरेडी जिसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ बढ़िया पराठा खिलाते जाएंगे और इंग्रेडिएंट्स प्योर रखेंगे तो ये, मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमेशा की चलने वाली है। कहीं जो युवा जनरेशन है, युवा वर्ग है, वो पिज्ज़ा बर्गर के सामने देसी टेस्ट है जो भूलता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस्ड फूड जो है ना, आप पिज़्ज़ा की बातें कर रहे हैं,
प्रोसेस्ड फूड्स को रखने के लिए, लाइव रखने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, आपके सिस्टम में क्या कहाँ आप डाल रहे हैं, जो अंदर जो हमारे जो शरीर में जो कुदरत की चीज़ें उसके साथ मिक्स होती हैं, तो वो मिक्स होने के बाद ठीक से डाइजेस्ट होके पर्पस क्या है। आप खा रहे हैं, सिर्फ टेस्ट है ऐसा नहीं है, आपके शरीर को भी तो ताकत चाहिए। वो ताकत कैसे मिलेगी? उसमें आप घी डाल रहे हैं। अगर आलू पराठा तो उसमें पटेटोज़ हैं। पटेटो क्या चीज़ है? रूट है। रूट का क्या मतलब है? मिनरल्स हैं। तो आप अपने शरीर को क्या ख़राब करना चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि अच्छे से अच्छा उसका समय निकले, बीमारी ना हो। तो जो यूथ को है आप एक्चुअली एडुकेट भी कर रहे हैं। चीज़ ये है कि खूबसूरत यानी टेस्ट पूरी दुनिया में ज़बान तो एक ही है टेस्ट लेने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम समय में, बहुत यंग एज में इन्होंने ओनली पराठा शुरू कर दिया है, क्या शुभकामनाएं होंगी यंग? और एक चीज़ मैं इसमें माफ़ कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगी कि ये अपने में मैंने पहले भी कहा है, कंप्लीट फूड और बैलेंस्ड फूड आप पाएंगे कि इसमें हर चीज़ मिल रही है, कोई और दूसरा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। जी माता जी, क्या शुभकामनाएं? जी एक चीज़ बताओगी, हम लोग जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस से आते हैं, हमारे बहुत सारी गेस्ट इंटरनेशनल से आते हैं। तो शुरुआत में मेरे को पता नहीं था ये जस्ट ओनली पराठा के बारे में, लेकिन जब वो आते थे गेस्ट हाउस में तो बताते थे कि आज इतनी अच्छी जगह पे पराठे खाए हैं। वो कहते हम लोग ज़्यादा लोग सब लिंकिंग रोड पे जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे भी इनका एक जॉइंट है, तो वहाँ से उन्होंने कहा बताया कि करीब से करीब 200-250 वैरायटी है। तो मैं भी आश्चर्य हो गई, इतनी वैरायटी पराठा मैंने भी देखी नहीं है और ना इतनी खाई है। तो मेरे को लगता है बहुत जस्टिस होगा कि ये शुरुआत कर रहे इस ब्रांड की यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ईटिंग प्लेसेस मैंने देखी जब हम यहाँ पे आ रहे थे। तो दिस विल बी इन ग्रेट डिमांड एंड आई थिंक इट्स वेरी ऑस्पिशियस। Yes. We are blessing Arjun that at such a young age he is venturing into a very positive place. Thank you so much. Hare Krishna. सर, चलते चलते सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं आपको शुभकामनाएं देने, क्या कहना है? आप चलते चलते आखिरी समय। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी जो मेरे साथ यहाँ पे आज इनाग्रेशन में मुझे साथ में सपोर्ट किया है एंड मेरे ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी एंड आई होप आप सब यहाँ पे अपना हमारा फूड एंजॉय करते हैं। आज हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं फूड एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, एंड आई होप दिस वेंचर is a success in this area and people of this area get to feel the food of Delhi. We wish you all the success. पराठे ने अपनी ऑलरेडी जगह बनाई हुई है, इट डज़ नॉट नीड टू क्रिएट अनदर स्पेस। आज जो टेस्ट ऑफ पराठा है और जो ऑथेंटिक टेस्ट इंडिया का होता है, अल्टीमेटली हर यूथ, हर इंडिया का जो बच्चा है उसको इंडियन टेस्ट चाहिए होता है एंड दिस इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स टू इट। इसके साथ साथ हमारा जो दिल्ली चाट है, जो चाट हम लोग यहाँ पे लाते हैं दिल्ली स्ट्रीट से, वो भी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। लाइव चाट सर्व की जा रही है विच इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी एंड हैज़ इट्स ओन charm when you comes to eating good food. Wish you all the best. Thank you. हरे कृष्णा, दिस इज़ अ वंडरफुल मूवमेंट। एक्चुअली ओनली पराठा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग ये डेडिकेट करना चाहते हैं, वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करना है। बहुत ही हाइजीनिक फूड यहाँ पे मिलेगा एंड इट हैज़ ऑल टाइप ऑफ वेराइटीज़। वेजिटेरियन में जितना भी कुछ हो सकता है, वी ट्राई टू सर्व ऑल टाइप ऑफ वेराइटीज़, वैष्णव फूड ऑल्सो, जैन फूड ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पंजाबी एंड नॉर्थ इंडियन टेस्ट। और जो बांद्रा में भी सेटअप है और काफ़ी पुराना ब्रांड है, इट्स वेरी पॉपुलर एंड वी वांट टू प्रमोट इट। वी वांट टू सी दैट अक्रॉस द बॉम्बे वी विल हैव ऑल द डिफरेंट लोकेशंस, वी कैन सर्व एंटायर बॉम्बे डिलीशियस फूड। There are more than 400 varieties of parathas. The different mix, permutation, combination. You know, all type of parathas we serve. There is a special team for quality control, and we have this taste we are maintaining from last more than 1 decade. So it's very famous, and already we have a lot of demand for this. And to cater this in this area, entire area, we have decided to, we have chosen this location. प्रभु जी, क्या कहना चाहेंगे ओनली पराठा? हरे कृष्णा। जैसे पराठे का नाम आता है, मेरा आशीर्वाद पूरे ग्रुप को ऐसे सुंदर कार्य करने के लिए, भारत में अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे जॉइंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि
हमारे संस्कृति में पराठा ब्रेकफास्ट से लेके शाम तक खाया जाता है और जिसने भी ऐसा ये सोचा है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हमारे संस्कृति पे आहार के ऊपर भी प्रहार हो रहा है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट और बर्गर वगैरह खाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मगर यहाँ पर इन्होंने शुद्ध शाकाहारी पराठा का मेनू रखा हुआ है, जिससे कि लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कामना करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे भारत के जितने भी कुजिन्स हैं पराठा के रूप में यहाँ पर आस्वादन कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी अपने दादा नानी याद आती हो तो वो यहाँ पर आके ऐसा ही कुजिन खा सकते हैं, जैसे कि पराठा, विभिन्न प्रकार के पराठा है, मूली पराठा, मेथी पराठा और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर उपलब्ध जो शुद्ध तरीके से उनको मिल जाएगा। और मुझे पूरा आशा है कि लोग जो भी यहाँ पर आएंगे, जो भी भोजन लेंगे, उनको स्वादिष्ट लगेगा और वो सभी हेल्थ कॉन्शियस होंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में लोग बहुत कुछ कचरा चीज़ खा रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो ऐसे सात्विक भोजन खाएं जिससे कि उनका सेहत ठीक रहे और पौष्टिक रहे। पौष्टिक आहार खाने से जीवन सदैव अच्छा रहता है, प्रसन्नचित रहता है। और आशा करता हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्नचित होकर जाएं, पेट भर के पराठा खाएं और जीवन का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।